Hello, guys. Thank you very much for joining in. Hi, this is Ganesh Naik. I help finance professionals and students to excel in their career and become a better version of themselves. And I also guide students who are preparing for the FRM and CFA exam. I'm back with one of my students' interview who has been able to clear the FRM level 1 in the November 2022 attempt. And now we're going to be talking about his journey, his way of preparation, what challenges he faced. And again, just to clarify, what are the purposes of doing this interviews? A lot of people who prepare on their own, they are giving the exam for the second time, they need guidance of how other people are clearing the exam, they need motivation. So all of these interviews will help them to strategize for the exam in a better way. So with this, let us start with the discussion. So first of all, Yash, thank you very much for taking out time and talking to us and giving insight on your journey now. So first question, basically, when you started for the preparation for the exam, which one primarily, and what was your background at that point in time? Okay, I work for a public sector bank. Mhm. I cleared my IBPS and got into it. I started my preparation around March end and April start. I Okay, spoke to a friend of mine. He has cleared level 1 before. okay, He brought me to your forum. So I started your preparation of FRM through your okay, lectures. I okay, spoke to you. So we started our journey. So as per it okay. was going through as per the plan. So you were a part of our live lecture. So you the way you were preparing on your own, was it matching with the lecture that I was doing? Yes, it was. It was. Sir, Oh, if I talk about my journey now, the first reading was very like the first we start with the first book is quite easy, after hmm, which we go to जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं it hmm, all gets jumbled up, and we don't understand anything basically in the first reading, but the hmm, point is we are not supposed to get panicked in the first reading. hmm. There was a moment कि ये सब क्या हो रहा है, हम मैं नहीं कर पाऊंगा, and I spoke to you sir. I called you up and I spoke to you, sir ये नहीं हो रहा है हमसे, and you were like कि sir Yash, it is only 3 months now, there is a lot of time left, अभी क्यों डर रहे हो? So I was like कि सर नहीं हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, बट फर्स्ट रीडिंग में Hmm, कुछ समझ में आना ही नहीं है. It is hmm, just you go through it, after which you get into second reading, you start understanding the portion in the second reading, hmm. then comes the third reading, आप confident हो जाते हो. हाँ, सॉरी सॉरी, बोले बोले बोले। फर्स्ट रीडिंग में कुछ समझ में नहीं आना है सर, कुछ आता ही नहीं है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को तो नहीं आता होगा, मेरे को तो नहीं आया. Hmm, उसके hmm, बाद हम आते हैं सेकंड रीडिंग में. दैट इज व्हेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द पोर्शन, व्हाट hmm, इज गोइंग ऑन. That is where you start linking the chapters, book 3 to book 4, book 4 to book 1. hmm. After which, when it comes to the third reading, you start understanding. You actually get confident about the questions. You actually understand the concepts एकदम अच्छे से sir. Okay. That is the point where you are confident about the subject. बट हाँ, I'll just put down my thoughts जो आपने बोला ना उसके ऊपर। क्या होता है कि जब आप फर्स्ट रीडिंग करते हो, ओके, तो आप जी. एक्सप्लोर करने के लिए करते हो। ये शायद मैंने आपको तभी बोला होगा कि चैप्टर में है क्या, क्या फॉर्मूला है, क्या है। आपकी एक्चुअल प्रिपरेशन, मतलब जब आपके ऊपर एक प्रेशर होता है तो मुझे सॉल्व करना है, वो आता है सेकंड रीडिंग में। तभी आप थोड़ा ध्यान से पढ़ते हो कि अरे मैंने, और तभी आपका रिकलेक्ट भी होता है, अरे मैंने पढ़ा था कुछ, और वो फिर जर्नी स्टार्ट होती है। सेकंड रीडिंग इज द मेन रीडिंग, जो आपका एक्चुअल Yes, आप yes. प्रेशर में करते हो वैसा। तो आप आपका वो फ्लो चल रहा था, जैसे आपने बताया कि 3 मंथ्स के बाद आपको लग जी, रहा था कि जी. नहीं होगा बेसिकली। फिर नहीं हमारा एक होगा सर. डिस्कशन हुआ, फिर हमने वापस से आपने वापस से जर्नी कंटिन्यू किया। फिर जी. आपने मतलब 3 मंथ्स तक आपके 3 मंथ्स के बाद आपका 3 मंथ्स तक आपका फ्लो कैसा था पढ़ने का, इन द सेंस आप कितना टाइम दे रहे थे ऑन अ डेली बेसिस? सर स्टार्टिंग में तो बहुत इजी था चैप्टर्स. So it used to get finished in 2 hours or very less time. आफ्टर विच जैसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ते गया सर, आपको फोर्सफुली उसको पॉज करके फिर से रिवाइंड करके फिर से देखना है कॉन्सेप्ट क्लियर होने तक. ओके, सो धीरे धीरे समय बढ़ जाता है और आप उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाते हो कि आप देने लगते हो समय. सो आई नेवर केप्ट अ काउंट ऑफ टाइम. इट वाज जस्ट कि ओके, आई हैव टू फिनिश द वीक्स पोर्शन. बराबर। जो मैं पढ़ाने वाला जितने हूँ टाइम उसका नहीं वीडियो आप मिलता देख था. के आएंगे। जी, जी. ओके, उस ओके, वीक में उसको कंप्लीट करना है. ओके।
एंड जब हम लेक्चर में आप पढ़ रहे थे तो आपका एक रिवीजन हो रहा था, बिकॉज आपने ऑलरेडी वो चीज जी देखी है। एग्जैक्टली सर। यस Okay, यस। तो आपको रिकलेक्ट हो लाइव रहा था बहुत लेक्चर सारी इज चीज। हाँ, यस बोलिए। यस, लाइव लेक्चर इज जस्ट लाइक एन रिवीजन आफ्टर विच यू रीड द बुक। हम्म, उसमें सब क्लियर हो जाता है। ओके। अभी आपने क्वेश्चन बैंक कब स्टार्ट किया सॉल्विंग? आई स्टार्टेड क्वेश्चन बैंक आफ्टर टू रीडिंग्स सर, टू कंप्लीट तो रीडिंग्स। वो कब स्टार्ट हुआ, कुछ अगर आपको डेट याद है अंदाजन? I can't recall the date, sir, but at least 2 months before the exam. ओके, Three तब months आपने before the exam, I'll tell you, sir. 3 months before the exam, I used to solve अगस्त, only one question bank daily. Yes. ये हम लोग बात कर रहे हैं अगस्त फर्स्ट के आसपास? हाँ, most probably yes. ओके, ठीक है। फिर आप हर रोज एक चैप्टर को रिवाइज करके उसको सॉल्व करते जा, Yes, yes. चैप्टर वाइज क्वेश्चंस। अभी जब आप In the सॉल्व कर रहे beginning, it was very easy, sir. Yes. In the beginning, it was very easy. After थे। which it ओके। got tough. So थोड़ा difficult होने लग गया. Difficulty level बढ़ते जाता है, sir. हम्म। ओके, बिकॉज हम स्टार्टिंग में जो है ना, बुक वन के थोड़े थियरी चैप्टर्स हैं, बुक थ्री के Yes. थोड़े थियरी वो कर रहे हैं, जो हमारा एक फ्लो है पढ़ने का। एंड देन यू एंटर इनटू फ्यूचर्स, ऑप्शन, ऑप्शन Yes. वैल्यूएशन। तो आपने जो सॉल्व किया था वो उसी एक्सेल वाले मेरे ट्रैकर के फॉर्मेट में ही Yes, आप yes. I करते थे? exactly followed that. ओके। तो जब आप सॉल्व कर रहे थे तो आपको ऑब्वियसली जो रॉन्ग आया, तो आपने उसको कैसे टैकल किया? आपने फिर से जाके कंटेंट पढ़ा, फिर से देखा कि क्या था मतलब आपका अप्रोच जो रॉन्ग आ रहे थे? सर फर्स्टली आई मैंने तो सोल्यूशन देखा सर। सोल्यूशन में ओके। क्लियर हो जाता है। अगर सोल्यूशन में क्लियर नहीं हुआ तो आई केम टू आवर टेलीग्राम चैनल, वहां से राइट। क्लियर हो। ओके। अम, मैंने कभी बुक जाके रीड नहीं किया फिर से। आए ओके। सोल्यूशन में ही काम हो गया, या फिर ओके, टेलीग्राम से क्लियर हो। ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन बैंक सॉल्विंग कब खत्म हुआ अंदाजन? एग्जैक्टली 1 मंथ बिफोर एग्जाम। वैसे मैंने शेड्यूल किया था, जैसे टाइम पे खत्म हो गया। तो आफ्टर विच आई डिड सितंबर, माई फाइनल रीडिंग। सितंबर एंड के आसपास या अक्टूबर मिड? नवंबर में एग्जाम दिया सर। अक्टूबर अक्टूबर स्टार्ट के आसपास खत्म हो गया, सितंबर एंड के आसपास खत्म हो ओके, सो तब तक आपका दो रीडिंग हो चुका था, कंटेंट का फुल गया। जी जी सॉल्विंग भी हो चुका था। ओके। उसके बाद जी। आपने उसका आपने एक फुल फ्लेज रिवीजन स्टार्ट किया, एम आई करेक्ट? उसके बाद मैंने फुल फ्लेज रिवीजन स्टार्ट किया सर। ओके। आपने सेक्शनल टेस्ट दिए उसके बाद, बाय एनी चांस? जी सर, सेक्शनल टेस्ट भी दिए। वो कैसे लगे आपको, डिफिकल्ट लगे बाय एनी चांस सेक्शनल सर टेस्ट? ऑनेस्टली स्पीकिंग ना, आफ्टर दो रीडिंग होने के बाद, दो रीडिंग भी नहीं सर, तब तक तीन रीडिंग हो गए थे। मैं बताता हूँ। पहले एक फर्स्ट रीडिंग, उसके बाद लाइव लेक्चर के बाद का एक रीडिंग, और उसके बाद टेस्ट क्वेश्चन। से पहले का एक रीडिंग चैप्टर वाइज, हाँ। क्वेश्चन बैंक्स के पहले का रीडिंग। तो ऐसे तीन टेस्ट हो गए थे सर। बहुत ज्यादा एकदम हाईली कॉन्फिडेंट हो गया था कि सब एकदम समझ में आ गया था। उसके बाद कुछ ऐसे डिफिकल्ट लगना नहीं लग रहा था सर। ओके। सब एकदम ओके। कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर रहा था। इवन जो ओके। सेक्शनल टेस्ट थे, रादर फुल लेंथ मॉक टेस्ट थे, वो भी बहुत कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर रहा था। और उसमें स्कोर भी अच्छा आ रहा था, 50 to 60 के बीच में स्कोर आ रहा था। ओके, और आपने गैप्स लिए थे मॉक्स के बीच में, मतलब फर्स्ट मॉक दिया, फिर कुछ दिन रिवाइज किया, फिर सेकंड, ऐसा था ओके आपका ओके स्ट्रैटेजी? सर, उसमें मैंने 4 दिन में 4 मॉक दे दिए एक ही दिन। अरे वाह, मतलब ये क्यों किया, क्योंकि टाइम कम बचा था? सर नहीं, टाइम नहीं बचा, टाइम तो बहुत बचा था, 1 वीक बचा था एग्जाम से पहले। बट ओके। आई वाज लाइक कि ओके, ये दे दिया आज, 100 क्वेश्चंस है, रिवीजन भी हो गया फटाफट। फिर अगले दिन अगले 100 दे दिए, देते गया। ओके, मजा आने लग 50। गया था सर। ओके, 50 to 60 क्वेश्चन आप ओके। आपको स्कोर आ रहा था ऑन एन एवरेज? ओके। जी जी और फिर आप जब एग्जाम में गए, ओके, एग्जाम जी। के दिन आपका, आपको कोई चैलेंज हुआ सेंटर पे, मतलब एंट्री करते वक्त या कुछ भी ऐसा कोई चैलेंज था? सर नो 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 सर, मेरे सेंटर सच पे में? सिर्फ दो ही स्टूडेंट थे। हम्म। एक चैलेंज था कि मुझे उन्होंने मार्कर और एक शीट दिया था, तो मैंने उनको हम्म। बोल के पेंसिल और रफ शीट ले लिया, जिससे मैं कंफर्टेबल था। ओके। बस और कुछ ओके, डिफिकल्टी नहीं था उस वक्त। तो आपने जब स्टार्ट किया फर्स्ट 1 आवर कैसा गया? सर एग्जाम, व्हाट आई फेल्ट वाज थ्योरी वाज डिफिकल्ट एग्जाम में। ठीक है। आई कुड सॉल्व एवरी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन,
हम्म। थियोरी समझ में नहीं आया कुछ कुछ, बाकी एवरीथिंग एग्जाम वाज इजी सर। ओके। देयर वाज नथिंग आप एज डिफिकल्ट और आई टुक प्रेशर ऑफ एनीथिंग, टाइम प्रेशर भी नहीं लगा सर, इवन इट वाज सॉल्व्ड विद इन टाइम। ओके। आई ओके। हैड 8 to 7 minutes at last left. तो कितने कैलकुलेशन थे, कितने थियरी थे अंदाजन? सर मोस्ट 1/3 ये था, थियोरी था, बाकी कैलकुलेशंस था। 30-70? जैसे आपने बोला कैलकुलेशन आप प्रॉपरली कर पाए, देयर इज नो इशू इन दैट। थियरी में यस आपको कितने ऐसे क्वेश्चन थे जहाँ पे चैलेंज हुआ? सर, 30 क्वेश्चन जिसमें चैलेंज हुआ। 40 वाज, द लेंथ मतलब ऑफ द आपने, क्वेश्चन वाज वेरी बिग। यस, ओके, जो क्वेश्चन 40 बहुत क्वेश्चन ज्यादा थे, बड़ा था। जो हम्म, 40 थे उसमें कैसा था, मतलब आपने पढ़ा, आप, आपको समझ में आ गया क्या हो रहा है क्वेश्चन में, आपने ऑप्शन पे पहुंचे, आप इजीली एलिमिनेट कर ऑप्शन, पा रहे यस थे। ओके। यस 30 में आपको बड़े क्वेश्चन दिखे और ऑप्शन ही बड़े थे? यस यस, क्वेश्चंस भी बड़े थे और ऑप्शंस भी बड़े थे। ओके, उसमें और आपने उसमें ऑप्शन, सर हाँ, पढ़ के समझना बोलिए। पड़ रहा था कि उन्होंने क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या है। ओके। ओके। तो वो क्वेश्चंस आपके 2 मिनट में हो रहे थे क्या, मतलब अंदाजन आपको ऐसा लग रहा था कि 2 मिनट हो रहा है या ज्यादा टाइम जा रहा है? सर 2 मिनट में नहीं हो पा रहे थे, लेकिन वो टाइम आप बाद में कवर हो रहा था। ओके, ठीक है। वहां पे आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे थे, मतलब ऐसा हो रहा था कि आप दो ऑप्शन पे आके अटक गए? सर नहीं नहीं, जो लेंथी वाले थे ना सर, उसमें ऑप्शन एलिमिनेट करना भी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो ओ, पढ़ पढ़ के समझने में ही इतना समय लग रहा था कि ऑप्शन एलिमिनेट करना भी मुश्किल हो रहा था उसमें। ओके, सो ब्रॉडली 70 क्वेश्चन आप एकदम तो इजीली उसमें, कर पाए थे। हाँ जी, 30 इजीली में कर आपको, पाया, उसमें बाकी गेस करना पड़ रहा था, वाइल्ड गेस करना पड़ रहा था सर। ओ, ओके। ओके, तो 30 क्वेश्चन मतलब बहुत डाइसी था कि पता नहीं क्या होगा उसके अंदर। ओके। ढाई सी था जी। सो नाउ जब आपका एग्जाम हुआ और आप एग्जाम खत्म करके आए, कोई नंबर था आपके दिमाग में कि इतना तो राइट होगा? सर ऐसा नंबर तो नहीं था, बट आई वॉज प्रिटी कॉन्फिडेंट कि आई विल पास। ओके, इट वॉज मोर देन 50। आई वॉज कॉन्फिडेंट कि आई विल स्कोर मोर देन 50, 55, 50। वंडरफुल। अभी आपका जो क्वार्टाइल्स है वो कैसा है? माई क्वार्टाइल्स वर 3,112। 3112, सो सेकंड बुक एंड द थर्ड बुक आप टॉप कर गए। ओके। तो यस जस्ट मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, जब आपने स्टार्ट किया था अपना जर्नी, जी। तो आपको लगा था, मतलब आपका बैकग्राउंड है कुछ क्वांट में इसके ऊपर, इसके पहले? नो सर, नो नो, आई एम अ बीकॉम ग्रेजुएट, उसमें कॉन्ट्स मैंने की मैथ्स किया ही नहीं था, स्टैट्स तो बिल्कुल नहीं किया था। ओके, मैंने आपको एक्सप्लिसिटली पूछा बिकॉज जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक से आते हैं, ऑब्वियसली उनको एक सबसे बड़ा फियर होता है कि मुझे क्वांट, क्वांट मैं कैसे करूंगा। तो आपका एक्सपीरियंस क्या था उस बुक पे थ्रू आउट दी प्रिपरेशन, और क्या था? मेरा एक्सपीरियंस क्या था? ओके, मैंने जब बुक 2 स्टार्ट किया, तभी वो दैट वाज द मोमेंट वेयर आई स्टार्टेड पैनिकिंग। आपको याद भी होगा शायद सर, मैंने आपको कॉल किया था कि सर हम्म। ये नहीं समझ में आ रहा है, ये बहुत सारे डिफिकल्ट टर्म्स है, इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज है, ये फॉर्मूलाज याद नहीं हो रहे, कैसे होगा सर? तो उसमें कैच ये है कि यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस, फॉलो द प्रोसेस। कुछ एक दिन में चेंज नहीं होगा, आप उसको कंटिन्यूअसली करते रहोगे ना, तो आप बाद में इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे उसमें, और वो इजीली हो जाता है, उसमें बिल्कुल कुछ डिफिकल्ट नहीं। एफआरएम इज नॉट रियली डिफिकल्ट, जितना लोग समझते हैं करने से पहले, उतना डिफिकल्ट नहीं है। रादर आपने एक जो प्रोसीजर, जो प्रोसेस दिया है आपने, इट इज मोर देन सफिशिएंट। यू जस्ट हैव ओके। टू ट्रस्ट इट। फर्स्टली यू हैव टू ट्रस्ट इट कि दिस प्रोसेस विल हेल्प मी, दिस प्रोसेस विल टेक मी थ्रू, देन समझा। फॉलो इट। उसको फॉलो करोगे तो इजीली पास हो जाओगे। लास्ट लास्ट में तो आपको ऐसा लगेगा कि, फ्रैंकली स्पीकिंग, लास्ट के 10 दिन तो ऐसे हो गया था कि सर अभी बहुत पढ़ लिया और नहीं पढ़ पाऊंगा। तो आखिर के 10 दिन मैंने ब्रेक ले लिया था, पढ़ा ही नहीं था। इवन एग्जाम से पहले पहले 1 दिन 2 दिन पहले मैंने मेरे फ्रेंड से बात करी, तो वो बोल रहे कि मैं स्वेजर पढ़ रहा हूँ, एकदम लाइन टू लाइन रीड कर रहा हूँ। वैसे कुछ नहीं किया मैंने। ओके। उस प्रोसीजर को आप उतना फॉलो करोगे ना, उस प्रोसेस को फॉलो करोगे ना, वीक वाइज पढ़ो पहले, फिर लाइव लेक्चर्स देखो, फिर टेस्ट सीरीज दो, फिर उसके बाद जो भी आप रीडिंग करो या सेक्शनल टेस्ट दो और फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो, इट इज मोर देन इनफ।
You don't have to stress at any time. Okay, What got it. I feel कि जो क्या गलत हो रहा है, क्या हम पैनिक कर जाते हैं स्टार्टिंग में, बस वो गलत होता है, Okay. बाकी तो इजी है. FRM is very easy. I felt level 1 is very easy. ये फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा पब्लिक सेक्टर बैंक से कोई है स्टूडेंट जो इतना स्मूथली आप जो बता रहे हो उसमें ऐसा लग रहा है कि आपका कोई बैकग्राउंड था या आपने कुछ बहुत ज्यादा बोलते हैं ना कि आप एमबीए करके आए हैं या कुछ ऐसा था। बट जैसा आपने बताया कि बीकॉम ग्रेजुएट और आप उसके बाद भी 2 साल का एक्सपीरियंस, इट्स ओनली 2 इयर्स, और आप जॉब के साथ मैनेज कर पा रहे हो, तो दैट एंटायर प्रोसेस इज ये it डेफिनेटली is, yes, yes, you have वाओ। to let other things go. कुछ sacrifices करने पड़ते हैं. ऐसा नहीं है कि आप घूम सकते हो, वीकेंड में पार्टीज कर सकते हो, वो सब छोड़ना पड़ता है. राइट। वीकेंड राइट। सैटरडे संडे जब ऑफ रहता है तब आपको घर में बैठ के पढ़ना पड़ता है. ओके, तो लेकिन वो तो आपने जैसे जरूरी अभी है आप सर, उसके बिना लेक्चर्स तो. में थे, मेरे लेक्चर्स सैटरडेज को भी होते थे, तो आपने इसको कैसे जी मैनेज जी. किया? I could attend only second, fourth Saturday, Sundays lecture तो because first and third Saturday is working. Second, समझा। fourth मैं अटेंड कर पा रहा था. ये मुझे भी थोड़ा रियलाइज हो रहा है कि बुक बैंकर्स को थोड़ा इनकन्वीनियंस है उसके ऊपर, बट मेरा चैलेंज ये हो जाता है कि फिर मुझे थोड़ा सा आई वांट टू गिव गुड टाइम टू प्रिपेयर। मतलब मुझे लेक्चर्स देते वक्त ऐसा नहीं करना है कि मैं एक चैप्टर को 2 घंटे में ही खत्म करूँ। अगर मुझे लग रहा है कि थोड़ा और डिटेल में जाना है तो मुझे वो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, इसलिए मैं थोड़ा सा सैटरडे को भी रखता हूँ। बट थोड़ा मैं देखूंगा इसको मैं क्या चेंज कर सकता हूँ ताकि बैंकर्स को फैसिलिटी हो जाए कि वो लोग फर्स्ट एंड थर्ड को मिस ना कर पाए वैसा। अटेंड कर पाए. हाँ। सर बट लाइव अभी लेक्चर वर द बेस्ट पार्ट ऑफ. Live lectures were the best part. People who couldn't attend a live lecture actually felt कि live lecture, but live lecture was the best part. We put down a query in the chat section and you resolve it. ओके। उसमें कैसे ओके। रहता है, आपने जैसे कहा था कि पहले नोट कर लो बुक में कि आपकी क्वेरी क्या है. हम्म। एकदम परफेक्ट कहा था सर. फर्स्ट रीडिंग में आप पूरी क्वेरीज नोट कर लो. लाइव सेशन में जब बैठोगे तब चैट कर लो या फिर वॉइस कॉल पे आप ये कर लो, अनम्यूट करके क्वेरीज रिजॉल्व कर लो. राइट। राइट, वंडरफुल। अभी जो रिजल्ट आया आपका, तो आपके फ्रेंड्स फैमिलीज में क्या रिएक्शन है उसके ऊपर? My family is very happy. Even my everyone is happy. My family is, my especially my dad is very proud. ओके, और ये आपका पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम था क्या आफ्टर आईबीपीएस? नहीं आए. Yes, I work for a public sector bank, sir. This is not my first competitor. Now I have attended n हाँ। numbers of competitors. अच्छा, जब आप एंटर कर रहे थे तब आपने बहुत सारे एग्जाम्स दिए थे तभी? Yes, ओके। yes. ओके। और अभी अगर मैं आपको पूछूं कि 3 टिप्स जो एफआरएम लेवल 1 कैंडिडेट को आप देना चाहोगे अपने वे ऑफ प्रिपरेशन से? Trust the process. Follow the process. Consistency. That is how ओके, you will clear it very easily. वंडरफुल। आपने जो प्रोसेस क्रिएट किया है, आपने जो प्रोसेस दिया है हमको, उसको बस फॉलो करना है. उसको फुल्ली ट्रस्ट करना है कि इससे होगा. बिल्कुल डाउट नहीं लाना है बीच में कि ये नहीं, सर ने ये नहीं पढ़ाया, बाकी कोई ट्यूटर ये पढ़ा रहा है, ये नहीं पढ़ाया, सर ने सिर्फ स्वेजर ही बोला है, सर ने बायोनिक टर्टल नहीं ये किया, नहीं, कुछ जरूरी नहीं है. मैं फॉलो इट. लास्ट 3-4 साल से बोल रहा हूँ कि सर्जर के अलावा आपको कोई बुक की जरूरत नहीं, बिकॉज आप फोरम पे जाओगे, कोई और जगह देखते हो तो बहुत ज्यादा फियर है कि बायोनिक टर्टल करना चाहिए। इनफैक्ट वो करेंगे, इट इज सो टफ कि मोराली डाउन हो जाता है, सो टफ। जी. तो मतलब अननेसेसरीली क्यों प्रेशर लेना है जबकि उसका जरूरत भी नहीं है, उसके बिना भी आप इवन पास हो स्टूडेंट्स सकते है हो। ना, फर्स्ट रीडिंग में ही फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने बैठते हैं कॉन्फिडेंस आने के लिए, लेकिन रादर उल्टा हो जाएगा सर, हो जाता हाँ, कि मैं इसके लिए मैंने मोरल वो डाउन हो जाता. एक्सप्लिसिटली बहुत मैं लेक्चर्स में भी यही बोलता हूँ कि आप इमीडिएटली भी क्वेश्चन मत सॉल्व करो, यू जस्ट रीड एंड देन आप एक गैप के बाद करिए सो दैट आप भूलो, यू रिवाइज, एंड बिकॉज यू हैव नॉट सॉल्व द क्वेश्चन बैंक, आपके ऊपर एक प्रेशर है कि अरे मुझे पढ़ना है और मुझे क्वेश्चन देना है, वो भी एक पैरेलल चलता जाएगा आपका। सर तो यहाँ पे क्या गलत होता है सर, हम इंडियंस को ऐसा मेंटालिटी है कि हम क्वेश्चन देख के उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करते. दिस इज ओके। वेयर एफआरएम टेस्ट्स यू की इन कॉन्सेप्ट्स. यहाँ पे सारा याद रखना जरूरी नहीं है. इट इज ओनली कि यू हैव टू पास. पूरा पोर्शन समझना, पूरा पोर्शन रटना, ये भी जरूरी नहीं है. हम्म। ओके। ओके।
वंडरफुल यश, आई मीन ये जो आपका कॉन्वर्जेशन था और जिस तरीके से आपने बताया अपना जर्नी, स्पेशली जो आप जब पब्लिक सेक्टर बैंक में काम कर रहे हो और फिर इसको आपने क्लियर किया है, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आप क्लियर कर रहे हो, ओके, विद अ कंसिस्टेंट प्रिपरेशन। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो बैंकर्स टू अंडरस्टैंड कि इट इज नॉट डिफिकल्ट। आप टाइम दोगे इसको तो आप कर सकते हो, बिकॉज बैंकर्स जो है आज के डेट में जितना सब एग्जाम्स देके गए हैं, इतने साल का एक्सपीरियंस, इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर देम एज सच, बट वो ये कि इसको मैनेज करना, वो जो 6-7 मंथ्स का जो मैनेज पीरियड है, करना। वही यस, कंसिस्टेंसी सिक्स जो आपने मंथ्स बोला ना, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। सो आई एम वेरी हैप्पी ऑन योर सक्सेस एंड आई एम श्योर कि आप लेवल 2 भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करके निकलेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग जी आउट सर। टाइम एंड टॉकिंग टू अस एंड गिविंग इनसाइट ऑन योर जर्नी। थैंक यू। यस, थैंक यू।